रोलिंग है. चलो, we can start. Day 66. We have reached the point where everyone will be thinking कि सोशल दिन से रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं. नो बिग डील. अब कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, डेली करते हैं हम ये. टुडे अपडेट दे देते हैं. आज चेस्ट डे था. नाइस वर्कआउट मे बी. और एक महीने की फास्टिंग के बाद अपडेट देता हूँ कि द वेट अपडेट इज आई लॉस्ट अराउंड 3.5 kg. सोच लेना. मैं एक महीने के व्रत में क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ. तो अगर इतना आप मेहनत करते हो तो यू कैन लूज अप टू 3 kg. ठीक है, एक महीने में 10 kg वाला मैं गोल सेट नहीं करता. 2-3 kg 4 kg अराउंड यू कैन लूज जस्ट बाय डूइंग कीटो और समथिंग लाइक दैट. जस्ट बाय डूइंग सावन के व्रत यू कैन लूज 3 kg. तो अब देख लेना अपने हिसाब से. जिसको भी लूज करना है. अनदर टिप टुडे we'll talk about the most important question of my life or anyone's life. What is meaning? What is overall meaning of life? How does it work? क्या होता है meaning? We'll talk about it. क्यों meaning चाहिए होता है? Or do you really want to find your meaning, or you just want distractions? अभी मेरा बर्थडे आएगा 23 on 23. I'll turn 23 on 23. तो I planned a tattoo for myself कि यार नहीं, इस बार we'll do a tattoo, which I'm still confused about, but I planned. There is a phrase in French which is dolce far niente, if I'm pronouncing it correctly. The meaning is the sweetness of doing nothing. When you do nothing and you sit alone by yourself without any kind of work, there is a phrase in French about that. तो उसमें कितना sweetness है. मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि if you are doing it regularly, if you really have nothing to do, there is no sweetness in doing nothing because you are always in it. कि when you are doing nothing, मतलब आप जीवन में भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो there will be no sweetness in doing nothing, sitting alone or working by yourself. There is no sweetness in such things. But when you are actually in chaos, when you are building something, you are doing मतलब you are doing amazing kind of work, and then when you take out time, sit alone and find yourself, find the meaning of what you are doing, there is a sweetness in that particular thing. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि if you have really came in this video, click on this thumbnail, and if you have come this far, एक सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ मैं. There is no meaning of whatever you are doing in long term. When you will die, there is no meaning of all your life. What does that mean? कि आप ये सब नहीं करो. नहीं. This is just because we are on an 80-year, 90-year long vacation from the outer world. In Hinduism, obviously, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है उसके बेस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग जब ढूंढने जाते हो तो ये सोच के जाओ कि एग्जैक्टली किस चीज़ का मीनिंग, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है. काम का मीनिंग, या रहने का मीनिंग, या मेरी एग्जिस्टेंस का मीनिंग, या मैं कौन हूँ उसका मीनिंग, या मैं क्या कर रहा हूँ उसका मीनिंग. दैट इज द थिंग यू रियली नीड टू फाइंड. बी स्पेसिफिक इन वट एवर यू आर स्टडिंग और लिसनिंग और टॉकिंग. Broadly, there is no meaning of life, but when you are doing some things, there are meanings of them. तो सीधा सिंपल सी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप मीनिंग ढूंढने जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ इट as if you deserve it or not, if you have done enough work, if you are thriving in your life, if you are doing everything which you ever wanted to do, then you can find meaning. Otherwise, if you are not doing any of that, you are sitting alone by yourself and you are just cribbing about yourself, your life, कि there is no meaning, there will absolutely be no meaning in future as well.
तो मैं आपको सीधी सी बात ये बता देता हूँ कि इफ़ यू आर एक्चुअली डिजर्विंग ऑफ मीनिंग, यू आर ऑलरेडी फाइंडिंग इट. जैसे बिफोर दिस स्टूडियो थिंग, यूट्यूब थिंग, द मीनिंग ऑफ माई लाइफ वॉज टू ट्रेवल. एंड अब मुझे उससे भी एक बड़ा मीनिंग मिल चुका है, विच इज टीचिंग पीपल, टेलिंग माई थॉट्स एंड मेकिंग पर्सपेक्टिव्स. दैट्स अ बिगर मीनिंग फॉर मी. तो जब आप ये बातें सोचने लगते हो ना, एक तो थिंक ऑफ योर सेल्फ एज यू आर ऑलरेडी इन अ हायर स्टेट देन अदर पीपल. क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक रिपीटेटिव लाइफ में जी रहे हैं एंड दे आर अनेबल टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स. एटलीस्ट यू आर प्रिविलेज्ड कि यू आर थिंकिंग अबाउट what meaning does or what is the meaning of my life. अगर आप पे ये thought आ रहा ना, तो you are not bothered by maximum things in your life. मैं विपश्यना करने गया था and I found in विपश्यना कि there are only rich people doing this. There is no middle class, lower middle class person there. उनके पास, सबके पास enough resources, enough power, enough money था, इसलिए वो 10 दिन की छुट्टी लेके विपश्यना करने आए स्पेसिफिकली. बहुत सारे ऐसे लोग थे, करोड़पति, लॉयर्स, फाउंडर्स, पुलिस वाले, आर्मी वाले, मतलब वेटरन्स, एक्टर्स, ये लोग थे सारे. स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, ये वो ये सब अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं. एंड देन दे आर आस्किंग फॉर मीनिंग. तो अगर आप ये अपने घर में बैठे बिना कुछ किए सोच रहे हो, तो माय गाय, यू आर रियली एट अ रियली बैड प्लेस इन योर लाइफ. Because for finding meaning, you need to be an alchemist and you need to leave everything and go forward to find yourself. किसी की भी पहली बुक द एल्केमिस्ट हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि आप उससे बहुत मोटिवेट होकर अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने निकल जाओ, बिकॉज दैट इज़ नॉट द वे ऑफ फाइंडिंग. और आप अगर ये रील देख के ये सोच रहे हो, कोई चूतिया एक्टर कोई इंटरव्यू में लेके बोल रहा है कि यार भारत भ्रमण करो, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा, इस देश में घूमना बहुत सस्ता है, अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे लोकल्स में, यहाँ नहीं करोगे, वहाँ नहीं करोगे, तो यू देयर विल बी नो मीनिंग, यू विल बी रनिंग इन कॉन्स्टेंट. सब चूतिया आप हैं, सब चूतिया आप हैं. If you are not doing your work properly, if you are not studying properly, if you are not reading properly, if you are not making correct decisions, there is no meaning of that travel also. उन लोगों को स्पेशली क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि गो सिट ऑन दैट बेंच इन विच यू विल बी, मेट्रो स्टेशन की बेंच पे बैठो एंड ऑब्जर्व पीपल अराउंड. एंड व्हेन दे ट्रेवल दे डू ऑब्जर्वेशन, which you and I don't, because we don't have anything to do with people. We don't like to mimic people. We don't like to act. वो बंदे एक्टर है, वो कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर EMIs का बोझ है, तुम्हारे ऊपर पापा की डांट का बोझ है. तुम्हें स्टडीज में और अपने काम में सक्सेसफुल होना है, उसके बाद जहाँ मीनिंग ढूंढना है, जो करना है कर लेना. Nobody will stop you, not even your parents. उस बचपने में जीना बंद करो जहाँ एक रील देखोगे, पहाड़ पे एक बंदा बैठा है और उसके पीछे वो वीडियो शूट हो रही है, जैसे यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है ना. मैं आपको बहुत अच्छी पीसफुल बातें करके दिखा सकता हूँ, मेरे में वो एबिलिटी भी है, बट मैं नहीं करता क्योंकि वो सत्य नहीं है. सत्य ये है, इस जनवरी मैं एक ट्रिप पे जाके आया था. ऑन माई फर्स्ट ट्रैक आई वॉज आउट फॉर 8 days and I thought this was the meaning. And when I get back to my world again, working in business, making businesses and doing social media, I found that that was only a distraction. That was not the meaning. And in this 64-66 days, I haven't talked about travel. I haven't made any plan of future. And when my friends tries to make plan, मैं उनको टाल देता हूँ. क्या होगा जो देखेंगे बाद में, कि there is a very famous pinnacle in Maharashtra, we want to do that adventure. बट मैंने क्या कहा, क्या देखेंगे, करना ही है, इस साल कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के बाद करेंगे. बट फॉर दैट टू हैपन वी नीड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑफ 180 days बिफोर, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट. मीनिंग जहाँ हो वही है. किसी बीच में, किसी माउंटेन में, किन ही लोगों के पास मीनिंग नहीं है.
ना किसी बड़े बाबा के प्रवचन में मीनिंग है, और ना किसी संत महात्मा के कुटिया में मीनिंग है, क्योंकि वो तो खुद ढूंढ रहे हैं। तो जब तक आप अपने सराउंडिंग्स को एनालाइज नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड वेर एवर यू आर, try to maintain your calm. Don't be aggressive like me. I'm very emotional, a very aggressive man. That's it. Signing off, Gaurav.